افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے. جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر، ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے. ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. سیز فائر افغانستان حکومت کی درخواست پر وجود میں آئی ہے. اگر یعنی صرف وقت ضائع کرنے کے لیے کیا تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. افغانستان نے پاکستان پر حملہ بھارت کی شہ پر کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کھلے راز سے پردہ اٹھا دیا. وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہا جب حملہ ہوا تو افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے تھے. حالیہ واقعات سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. مجبوراً جوابی کارروائی کرنا پڑی. وقت گزاری کے لیے جنگ بندی قبول نہیں. فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہونا چاہیے. کابل کو جنگ بندی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے. مغربی ہمسائے کے ساتھ جائز شرائط پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں. افغانستان نے دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا. افغان عبوری حکومت کی درخواست پر سیز فائر ہوا. اب بال افغانستان کی کوچ میں ہے. کابل سے بھائی چارے کا رشتہ برقرار رکھیں گے. 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا. ماضی کی حکومت نے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی. کچھ لوگ غزہ معاملے پر سیاست کرنا چاہ رہے تھے. جب ادھر خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں تب کہاں تھے؟ فتنہ الخوارج کے سیز فائر کی آڑ میں عزائم خاک میں مل گئے. پاک فوج کی تیراندازی پر کامیاب کارروائی. 50 خوارج ہلاک. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ضلع محمد میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن. خوارج کے بڑے گروہ کو نشانہ بنایا گیا. آپریشن میں کئی دہشت گرد زخمی. پاک فوج کا علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن. خارجیوں کی تیراندازی کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی. آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا. خوارج افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں سر انجام دینے آئے تھے. خیبر پختونخوا میں آپریشن عزم استحکام. سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 34 خوارج انجام کو پہنچے. ISPR کے مطابق شمالی جنوبی وزیرستان اور بنو میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیے گئے. ISPR کے مطابق سپن بام میں 18 خوارج ہلاک ہوئے. دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ. جنوبی وزیرستان میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد ٹھکانے لگے. بنو آپریشن کے دوران بھی 8 دہشت گرد مارے گئے. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم. اقوام متحدہ کی رپورٹ نے افغانستان میں خوارج کی موجودگی بے نقاب کر دی. رپورٹ کے مطابق القاعدہ فتنہ الخوارج آزادانہ طور پر سرگرم ہے. وسطی ایشیائی ممالک اور خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ بن چکے. افغانستان کی اتھارٹی دہشت گرد گروہوں بشمول القاعدہ اور اس کے اتحادیوں کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہے. یہ گروہ غزنی، ہلمند، قندھار، کنڑ، ارزگان اور زابل میں سرگرم ہیں. دہشت گردی کے سائے میں تجارتی راستہ کھلا نہیں رہ سکتا. پاک افغان سرحدی کشیدگی کے بعد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معطل. افغانستان منتقلی میں استعمال ہونے والی ٹرانسپورٹ غیر معینہ مدت کے لیے روک دی گئی. کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر ہزاروں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی کلیئرنس رک گئی. FBR نے ٹرانسپورٹیشن روکنے کی باقاعدہ ہدایات جاری کر دیں. افغان ٹرانزٹ کے تمام گیٹ پاسز بھی منسوخ کر دیے گئے. انتظامیہ نے ITT کنٹینرز کو گاڑیوں پر آن لوڈ آف لوڈ کرنا شروع کر دیا. پابندی آئندہ احکامات تک برقرار رہے گی. حالات خراب ہونے پر افغان عوام اپنی حکومت کے خلاف بھڑک اٹھے. پاکستان کے ساتھ تجارت کھولنے کا مطالبہ. ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائیں. ایک دہشت گرد ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائے. تو کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ فلسطینی خود کہہ رہے ہوں کہ مسئلہ حل ہو گیا، امن قائم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو پھر پاکستان کے اندر اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں؟ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا تاثر بالکل غلط ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا TLP کے نکلنے سے پہلے سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوتے رہے. ہم نے ان سے کہا تھا آپ واپس چلے جائیں، کچھ نہیں کیا جائے گا. مظاہرین قاتلوں کو جیل سے نکلوانے کے مطالبات کرتے رہے. ہم نے صرف پرتشدد لوگوں کو سڑک سے کلیئر کر گیا.
इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने हथियार उठा रखे थे। TLP के अहदेदारों के अलावा किसी आलिम या मदरसे के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। हम सब आज फ़लस्तीन के लिए यौम तशक्कुर मनाएंगे। अताउल्लाह ताड़र ने कहा, यह एक ऐसा एहतजाज था जिसमें जदीद हथियार, खंजर, चाकू उठाए लोग शरीक हुए। जंग बंदी माहदे पर फ़लस्तीनी सजदारेज हुए। पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ बोले, शरपसंद अनासर की सरकूबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गिर्द शिकंजा कस गया। इस्लामाबाद में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन, मदारिस और दफातर सील। पुलिस की सिरी और ठाल चौक, मरी रोड, मदीना टाउन, बाराको में कार्रवाइयाँ। TLP दफातर के बाहर लगे झंडे और बैनर्स भी पुलिस ने उतार दिए। जिना गार्डन, बनी गाला, गौरी टाउन, अलीपुर फराश, इकबाल टाउन में भी दफातर सील। थाना तरनोल, सुंबल और संगजानी में 4 मुकदमात दर्ज। तमाम बैंक अकाउंट भी सील करने का फैसला। पंजाब भर में क्रैकडाउन में मजीद 326 अफराद गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 3400 से बढ़ गई। लाहौर में 12 कारकुनों का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ केसेस की मौसर पैरवी के लिए 2 सीनियर वकला स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। मजहबी जमात के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फैसला किया गया, वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश की जाएगी। नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे। पुलिस अफसरों की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनों को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे जब्त करके महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। बानी के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले बयान पर भी एक्शन। पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने जुम्मे की हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। PGO पैगामात में कहा, मुतालबात गैर ज़रूरी और तर्ज एहतजाज नाकाबिले कबूल है। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिस। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नफाज 18 अक्टूबर तक रहेगा। एहतजाज, जुलूस, रैलियों, धरनों, 4 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। सरकारी मुलाजमीन मुस्तस्ना होंगे। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेज फ़िरका वराना मवाद की इशाअत व तक़सीम पर भी पाबंदी। दो बड़ों में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान मुलाकात। राय के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पंजाब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। नून लीग पीपल्स पार्टी में चपकलिश की वजह बनने वाले मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात को एहतराम और क़दर की निगाह से देखते हैं। वफ़द का ख़ज़ा अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को ख़राज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। सदर जरदारी ने शहीद के बुलंद दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितनल खवारिज दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क में अमन के क़याम के लिए शहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी में राबता। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वफाक के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का सबसे पहले पाकिस्तान का नारा, कहा सबसे पहले पाकिस्तान फिर बाकी चीज़ें आती हैं। पहले ही दिन से बानी की रिहाई के लिए इक़दाम शुरू कर दिए, हमेशा पुरअमन एहतजाज किया और अब भी ये रास्ता खुला है। कल वफाक और पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा था कि बानी से मुलाकात करना चाहते हैं मगर जवाब नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई क़यादत को अडयाला जेल में दाखिले से रोका गया, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना देना गैर मुनासिब है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। मौलाना फजलुर रहमान की वफाक पर लफ्जी गोलाबारी, एक बार फिर इंतखाबात को चोरी शुदा करार दे दिया। कहा पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी, हम जाली मैंडेट को जूते की नोक पर रखते हैं। हमने इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश का रास्ता रोका, कोई माई का लाल इसराइल को तस्लीम करने की बात नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ पर खुश। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाई। कहा मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। मैंने कहा जंग ना रुकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अब यूक्रेन जंग भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सदर से कहता हूं जारहियत बंद करें, पुतिन को यूक्रेन से मुतालिक डील करना होगी। वाशिंगटन से हुक्म आया, दिल्ली ने फौरन जी हजूर कह दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की ट्रंप को रूसी तेल ना खरीदने की यकीन दहानी। अमरीकी सदर बोले खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे मगर अब मामला तय हो गया। हमास को जंग बंदी माहदे पर अमल करना होगा। हमास माहदे पर अमल नहीं करता तो इसराइल दोबारा लड़ाई शुरू कर सकता है। चीन के साथ तजारती जंग जारी है। टैरिफ हमारी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतीय वजारत खारजा ने कहा भारतीय कंपनियां रूसी तेल की दरामदात में बदतरीज कमी की तैयारी कर रही हैं। आलमी मंडी में उतार चढ़ाव के बावजूद सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब रूस ने कहा भारत के साथ तवानाई की शराकतदारी जारी रहेगी। महकमा दाखिला पंजाब का 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना मुकर्रर। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी। असलहा फरोशों और डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करने का भी हुक्म। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम रिहायशियों और उनके कारोबारों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डाटा सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। इत्तला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को फौरी डिपोर्ट किया जाएगा।